Good morning, class. Now, you are in class 6th and subject is English literature. I'm going to explain you lesson 3, Taro's Reward, part 2. Open page number 31, paragraph 7. Taro quickly filled with the pitcher he had with him and hurried home. The old man was delighted with the shake. After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. Para 8. That afternoon, a neighbor stopped by for a visit. Taro's father politely offered her a cup of the shake. The lady drank it greedily and thanked the old man. Then Taro told her the story of the magic waterfall. Thanking them for the delicious drink, she left in a hurry. By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. Now, explanation of the paragraph 7. Taro quickly filled with pitcher he had with him. In last paragraph, you have seen that Taro tasted that water of that waterfall and he was very much surprised. बहुत ज़्यादा उसे आश्चर्य हुआ कि it was not water, it was just a shake, it was not the water. ये पानी नहीं था, it was just a shake. So after tasting it again and again, when he was confirmed that it was not the water falling from the waterfall, it was shake. So Taro quickly filled with the pitcher he had with him. One pitcher Taro had brought with him. एक घड़ा अपने साथ तारो लेकर गया हुआ था और उस घड़े में उसने उस शेक को फिल कर लिया. दैट वाज जस्ट लाइक अ वाटर, जस्ट लाइक वाटर. पानी की तरह जो शेक था उस शेक को उसने फिल कर लिया एंड हरीड होम. यू कैन से वेंट बैक टू होम या केम बैक टू होम. घर की तरफ वापस आ गया. द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द शेक. He, after coming back home, he gave that shake to his father, who was shivering with cold. जो ठंड से कांप रहे थे पहले से, उसके फादर को उसने वो शेक दे दिया. Because his father was demanding for the shake ना. In last day I told you that his father was demanding for shake, soup. So that shake, that soup, Taro gave to. The old man was delighted with the shake. That old man became happy. His father became happy after getting the shake. उस शेक को पाने के बाद, पीने के बाद, जब he got the shake, जब उसे शेक मिला, वो सूप मिला, तो after drinking that soup, he was delighted. He delighted means happy, became happy. वो खुश हो गया. उसके फादर खुश हो गए. After only one swallow of the liquid, he stopped shivering. Swallow. ड्रिंकिंग सॉलो. सॉलो मीन्स होता है निगलना. जब किसी चीज़ को आप निगल रहे होते हो, एज फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दैट यू आर ड्रिंकिंग द वाटर बट यू आर कोई चीज़ आप खाते हो तो उसको ईटिंग कहते हैं. यू आर जस्ट ईटिंग द फूड. बट इफ़ समथिंग यू आर सॉलोइंग. सॉलो मीन्स जैसे मेडिसिन आप लेते हो, मेडिसिन को आप खाते नहीं हो. यू आर नॉट ईटिंग द मेडिसिन, यू आर जस्ट सॉलोइंग द मेडिसिन. यू आर जस्ट सॉलोइंग द मेडिसिन. आप उस मेडिसिन को क्या करते हो, निगलते हो, अपने गले में डालते हो. एंड आफ्टर दैट, तो व्हेन ही सॉलोड द सूप, जब उसने सूप को, शेक को निगला, मतलब एक घूंट लेकर के वो उसको निगलता है, हिज फादर, उसके पिताजी, तो ही स्टॉप शिवरिंग. ही स्टॉप शिवरिंग. बिफोर इट ही वॉज शिवरिंग, फादर वॉज शिवरिंग. काँप रहे थे उसके पिताजी, उसके बाद उन्होंने काँपना बंद कर दिया. एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर एंड स्टार्टेड टू डांस इन मिडिल ऑफ द फ्लोर. फ्लोर के बीच में उन्होंने डांस करना स्टार्ट कर दिया. बिकेम वेरी हैप्पी. इट मीन्स ही बिकेम वेरी हैप्पी. दैट आफ्टरनून, पैराग्राफ नंबर 8. दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाई फॉर अ विजिट. दैट आफ्टरनून, ऑन द सेम आफ्टरनून, अ नेबर, हिज नेबर मीन्स तारोज नेबर, स्टॉप्ड बाई हिम टू विजिट देम. उनको मिलने के लिए, उनको देखने के लिए उनका एक पड़ोसी आता है. नेबर मीन्स पड़ोसी. Taro's father politely offered her a cup of shake. Because Taro has had a lot of soup that time in the pitcher, so the soup was not finished, the shake was not finished yet. अभी तक shake खत्म नहीं हुआ था. तो as you can say, this is the manner कि when someone is coming to your house, you are offering something to eat and drink. आप उसे कुछ खाने और पीने के लिए देते हो. Taro also offered her a cup of shake. He just took out a cup of shake and offered to that neighbor.
That neighbor was a lady. So it is given here, the lady drank it greedily. The lady drank it greedily. Lady ने उसको greedily means you can say with taste and desire. उसको टेस्ट के और डिज़ायर के साथ कि और ज़्यादा ये मिले, या फिर ग्रीड मीन्स होता है लालच, तो ग्रीडली लालच के साथ उसके एक ग्रीडली सी ड्रैंक, उसने लेडी ने उस सूप को, उस शेक को पिया, एंड थैंक द ओल्ड मैन, और उस बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया, थैंक बोला. देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ मैजिक वाटरफॉल. नाउ तारो टोल्ड हर स्टोरी ऑफ मैजिक वाटरफॉल. व्हेन शी आस्क्ड, इसके बाद उसने पूछा कि फ्रॉम वेयर डिड यू प्रिपेयर्ड, या हाउ डिड यू प्रिपेयर्ड, या फ्रॉम वेयर डिड यू गेट दिस स्ट्रेंज सूप, सो डिलीशियस सूप, इतना स्वादिष्ट सूप तुम्हें कहाँ से मिला, शेक कहाँ से मिला. तारो टोल्ड हर द होल मैजिक स्टोरी, पूरी जादुई कहानी उसने उसे बताया कि व्हेन आई वाज चॉपिंग एंड कटिंग द वुड इन द फॉरेस्ट, सडनली आई हर्ड द साउंड ऑफ वाटर नियर मी. व्हेन आई वेंट देयर, अ वाटरफॉल वाज फॉलिंग फ्रॉम अ रॉक, एक चट्टान से वहाँ वाटरफॉल हो रहा था, वहाँ पानी गिर रहा था. एंड आफ्टर दैट वन मोर थिंग, व्हेन आई टेस्टेड इट to just remove my thirst to drink it, when I tasted it, so it was not the water, it was the shake. He told her the whole story, thanking them for the delicious drink. उनको धन्यवाद देने के बाद, उस सुंदर, या आप कह सकते हो डिलीशियस, उस स्वादिष्ट शेक को पीने के बाद, उस ड्रिंक को पीने के बाद थैंक करते हुए, धन्यवाद देते हुए, सी लेफ्ट इन अ हरी, हरीडली सी लेफ्ट, वो जल्दी से वहाँ उनके घर से निकल गई. सी came back from she left the house. By nightfall she had spread the story throughout the whole village. By nightfall means रात होते होते this story spread over the village. She told to each and every person of the village. उस औरत ने इस मैजिक स्टोरी को पूरे गांव के लोगों को बता दिया, सबको बता दिया, सारे पूरे गांव को ये कहानी पता चल गई. Now paragraph number 9. That evening there was a long procession of the visitors to woodcutter's house. Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the shake. In less than 1 hour the pitcher was empty. Now the story is now interesting. The whole village men means you can say all the village men were knowing this story. सबको ये कहानी, एक लोग को, एक व्यक्ति को, उस गांव के एक व्यक्ति को ये कहानी पता चल गई. रात होते होते तक सबको बता दिया उस औरत ने. Now after that evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. एक लंबी लाइन लग गई विलेजर्स की, गांव वालों की एक लंबी लाइन तारो के घर पर लग गई, उनसे मिलने के लिए, उनको देखने के लिए, उस शेक को जानने के लिए, टेस्ट करने के लिए. Each man heard the story of the waterfall. When any person was coming at Taro's house, he was just tasting that shake and asking the story. Taro was explaining to each and every person that story. उस कहानी को, वो मैजिक स्टोरी को हर किसी को बताता जा रहा था, सुनाता जा रहा था कि हाउ ही गॉट द शेक फ्रॉम दैट मैजिक वाटरफॉल. उस मैजिक वाटरफॉल से उसे वो शेक कैसे मिला, उस बात को वो हर किसी को बताता जा रहा था. Each man heard the story of that waterfall and took a sip of the shake. Every person tasted that shake. उस शेक को हर पर्सन ने, हर एक व्यक्ति ने टेस्ट किया और स्टोरी को जानने की कोशिश की, स्टोरी को जाना, उससे पूछा, तारो से पूछा. In less than 1 hour the pitcher was empty. So many people came at woodcutter's house, Taro's house. तारो के घर पर बहुत सारे लोग आए और उस वुडकटर के घर पर आए, और 1 घंटे से कम समय में, लेस देन 1 आवर, 1 घंटे से कम समय में पूरा का पूरा पिक्चर खाली हो गया. और एम्प्टी ऑफ द पिक्चर वाज एम्प्टी. इट वाज जस्ट, यू कैन से, नॉट अ ड्रॉप ऑफ शेक वाज देयर इन द पिक्चर. नाउ पैराग्राफ 10. Next morning Taro started for work even earlier than morning before. He carried with him the largest pitcher he owned, for he intended first of all to go to waterfall. When he reached it, he found to his great surprise that all his neighbors there. They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic shake. Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. He drank again and again, and then he shouted angrily, "Water! Nothing but water!" Others also tried, but there was no shake, only cold water. Now explanation of this paragraph number 10.
नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर. नेक्स्ट मॉर्निंग तारो वांटेड टू वर्क मोर देन फर्स्ट डे. पहले दिन से ज़्यादा वर्क करना चाहता था. सो ही गॉट अप अर्लियर देन बिफोर. पहले के दिन से जल्दी वो उठ जाता है. एंड ही स्टार्टेड वर्क, और उसने काम शुरू कर दिया. देन द मॉर्निंग बिफोर ही कैरिड him with him the largest pitcher he owned. He had so many pitchers, but the largest pitcher he had owned. सबसे बड़ा जो घड़ा उसके घर में था, तारो उसको लेकर अपने साथ जाता है. He went to village with that largest pitcher. For he intended first of all to go to waterfall. क्योंकि वो सबसे पहले पहुंचना चाहता था. He wanted to go to that waterfall. He told the story to all the, as you know, he told the story to all the village men. उसने पूरे गांव के लोगों को ये कहानी बताई थी. And each person wanted to go to that waterfall. हर पर्सन वहाँ तक पहुँचना चाहता था, उस शेक को लेना चाहता था, फील करना चाहता था, उसका टेस्ट करना चाहता था. So तारू wanted to go first. तारू सबसे पहले पहुँचना चाहता था. When he reached it, जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो he found to his great surprise. तारू was very much surprised to see. वहाँ पहुँचकर वो देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होता है that all his neighbors there. उसके सारे नेबर्स वहाँ पर थे, उसके सारे पड़ोसी वहाँ पहुँच गए थे. They were carrying pitchers. So many were carrying pitchers. बहुत सारे के पास, बहुत सारे नेबर्स के पास घड़ा था. Some had jars. कुछ के पास जार्स थे. बकेट्स, बाल्टी, जिसके पास जो भी बर्तन था, जो भी उनके पास बर्तन थे, वो लेकर अपने साथ गए थे. Some had buckets, pitchers, jars, anything they could find to hold the magic shake. Whatever they could get, जो कुछ भी उन्हें उनके घर में मिला, सारे बर्तन लेकर वो वहाँ पहुँचे थे उस मैजिक शेक को फिल करने के लिए, ले आने के लिए, घर लाने के लिए. Then one villager knelt. It is so interesting when you are reading the story that one villager couldn't find any bucket, jar or pitcher. उसके एक पड़ोसी को कोई बर्तन नहीं मिला, तो ही जस्ट नेल्ड डाउन. वो वहाँ पर घुटनों के बल बैठ गया, वाटरफॉल के पास घुटनों के बल बैठ गया. एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक. और उसने अपना मुंह खोल लिया. ओपनड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल. उस वाटरफॉल के नीचे उसने अपना मुंह खोल लिया कि डायरेक्ट लोग फिल करके, बकेट में, जार में फिल करके उसको पिएंगे, मैं सीधा पीऊँगा. वो वाटर मुझे सीधा, वो शेक मुझे सीधा पीना है, सीधा मुंह के अंदर मेरे जाएगा. तो ही knelt down under the waterfall and opened his mouth to drink the shake. He drank again and again. He started to drink the shake. He drank again and again. बार बार वो उस शेक को पी रहा था, बार बार उसको टेस्ट कर रहा था. And then he shouted angrily. But suddenly what happened? He started to shout angrily. गुस्सा होकर उसने चिल्लाना शुरू कर दिया. Water, पानी. नथिंग बट वाटर. हाँ, कुछ नहीं है. नथिंग बट वाटर, कुछ नहीं सिवाय पानी के, पानी को छोड़कर कुछ नहीं. दिस इज नॉट द शेक. इट मीन्स कि व्हेन ही वाज ड्रिंकिंग द शेक, इट वाज नॉट गिविंग द टेस्ट ऑफ शेक, इट वाज गिविंग द टेस्ट ऑफ वाटर. सो ही सेड दैट इट इज नॉट द वाटर, इट इज नॉट द शेक, इट इज जस्ट वाटर. ये शेक नहीं है, ये सिर्फ वाटर है, पानी है. अदर्स ऑल्सो ट्राइड. After hearing this, others also tried. Tried means other also tasted. दूसरे लोगों ने भी टेस्ट किया, थोड़ा सा शेक लेकर उसको टेस्ट किया. बट देयर वॉज नो शेक. लेकिन यहाँ पर कोई शेक नहीं था. इट वॉज नॉट द वाटर, द शेक फॉलिंग फ्रॉम दैट वाटरफॉल. जो शेक वो समझ रहे थे जो वाटरफॉल से गिर रहा था, दैट वॉज नॉट गिविंग द टेस्ट ऑफ शेक, इट वॉज गिविंग द टेस्ट ऑफ वाटर. ओनली कोल्ड वाटर, केवल ठंडा पानी. थैंक यू क्लास. That's sufficient for today.